پاک بھارت کشیدگی، تازہ صورتحال پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طارق اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری بریفنگ دیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کو قومی سلامتی کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان میں نام نہاد دہشت گردی کے کیمپوں کے بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کا مشن۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان کے لیے آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن کے دورے کا اہتمام۔ صحافیوں کو ان مقامات پر لے جایا جائے گا جن کے بارے میں بھارت دہشت گرد کیمپوں کا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ بھارت کنٹرول لائن پر دہشت گردوں کے مبینہ ٹھکانوں کے بارے میں بارہا بے بنیاد دعوے کر چکا ہے۔ بھارت کا محاذ رائی کے لیے جھوٹا بیانیہ بے نقاب۔ بھارتی میڈیا نے ایک اور من گھڑت خبر چلا دی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کا نام لے کر دہشت گردی کیمپس کے جھوٹے دعوے۔ بھارتی جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کا بین الاقوامی اور قومی میڈیا کے آزاد کشمیر کے دورے کا اہتمام۔ دورے سے کیمپس کے بارے میں بھارتی پروپیگنڈے کی قلعی کھل گئی۔ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کروانے کے ناقابل تردید ثبوت کی ڈاکومنٹری جاری۔ پہلگام فالس فلیگ کے اصل محرکات، زمینی حقائق اور بھارت کا جھوٹا بیانیہ بھی اجاگر۔ بھارتی عوام، سیاستدانوں، تمام مکتبہ فکر کی جانب سے پہلگام فالس فلیگ پر اٹھائے جانے والے سنجیدہ سوالات بھی ڈاکومنٹری کا حصہ۔ پہلگام فالس فلیگ میں کوتاہیوں کی ناقابل تردید شواہد۔ ملائیشیا کا پاک بھارت کشیدہ تعلقات میں پاکستان کے موقف کی تائید۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا ملائیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری محمد حسن سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ بھارتی بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز پروپیگنڈے سے آگاہ کیا۔ قومی مفاد کے تحفظ کا حق محفوظ رکھتے ہوئے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ پاک فوج عرض وطن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار۔ ہر محب وطن پاکستانی اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہے۔ بھارت گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنے ہی گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں اس کی جگہ سائی ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی لاہور میں مختلف وفود سے گفتگو۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ۔ مودی اور بھارتی میڈیا کا لاشوں پر ووٹ لینے کا کھیل بے نقاب۔ ٹی وی پروگرام میں کانگریس رہنما نے مودی کی تقریر کا ویڈیو کلپ چلا دیا۔ بی جے پی کی اعلی کار پروگرام اینکر مودی کا ناکام دفاع کرتی رہی۔ کانگریسی رہنما کی جانب سے ویڈیو چلاتے ہی اینکر پرسن کو سانپ سونگھ گیا۔ ویڈیو میں مودی کی جانب سے پلوامہ کے شہداء کو ہتھیار بنا کر ووٹ کی اپیل۔ عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج تسبیح کے دانوں کی مانند، قدرتی آفات ہوں یا دشمن سے جنگ، عوام ہمیشہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ۔ اب بھی وہی جذبہ قائم۔ عوام کا فوج کے قافلے پر پھول پھینک کر اظہار یکجہتی۔ عوام کا جذبہ اور محبت پاک افواج کے حوصلے بلند کرتا ہے۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، دفاعی ماہرین۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد انتہا پسند ہندوؤں کا مسلمانوں پر تشدد اور انتشار۔ نینی تال میں انتہا پسند ہندوؤں کی مسلمانوں کی دکانوں میں لوٹ مار۔ انتہا پسند ہندوؤں کی درندگی کے خلاف بھارتی شہری شاہیلا نگی نے آواز اٹھائی۔ مسلمانوں کا ساتھ دینے پر انتہا پسند ہندوؤں کی دھمکیاں۔ انتہا پسند ہندوؤں کی سوچ نے پورے بھارت کو لپیٹ میں لے لیا ہے، سیاسی تجزیہ کار۔ آزمانا نہیں، ہم تیار ہیں۔ امن ہماری خواہش ہے، کمزوری نہیں۔ پوری قوم وطن عزیز کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک تنازع جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے، اور جب یہ مسئلہ اس طریقے سے میز پر بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے تو اس کو ایک احمقوں کی طرح، زمانہ جاہلیت کی طرح جنگ کے ذریعے سے سارٹ آؤٹ کرنا، یہ ایک طرح کی بالکل ہی انسانی شعور کی پستی کی علامت ہے۔ جنگ لڑنے کو تیار ہیں ہم، آزمانا نہیں۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی تو جنگ لڑنا بخوبی جانتے ہیں۔ بھارت کی فالس فلیگ آپریشن کی ایک تاریخ ہے جس کے اثرات سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ جہاں تک اس کی ممکنہ جارحیت کا سوال ہے، پاکستان اس کے مکروہ عزائم سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ ہماری امن کی خواہش جو ہے
اس کو ہماری مجبوری یا ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. اینڈ ریسٹ assured, اس دفعہ اگر آپ نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو the response is going to be fantastic. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا. بھارت کو ہم پاکستانیوں کا ایک ہی پیغام ہے. ہم بڑے پرامن ہمسایہ ہیں آپ کے. ہمیں آپ کمزور مت سمجھیں. جو ہمارے امن کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیں ان کا جواب دینا آتا ہے. ہم پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ باد تھا, رہے گا اور ہے. دنیا بھر میں بھارت کا جھوٹا اشکار. واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی شرکت. مودی کے خلاف نعرے بازی. پہلگام فالس فلیگ آپریشن سوچا سمجھا ڈرامہ تھا. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت سکھوں اور کشمیریوں کے حقوق غصب کر رہا ہے. مقبوضہ وادی میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سنگاپور کے نامنتخب وزیر اعظم. غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری. مزید 45 فلسطینی شہید. امداد کی بندش تیسرے ماہ میں داخل. خوراک کی شدید قلت کے باعث بھوک سے 57 افراد شہید. صورتحال انتہائی سنگین. اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 52,500 ہو گئی. 1,18,000 سے زائد زخمی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سنگاپور کے نومنتخب وزیر اعظم لانس وونگ کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد. سنگاپور کی ترقی خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار. سنگاپور کے ساتھ دیرینہ شراکتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے خواہاں. دونوں ملکوں کے درمیان اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے پر امید ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. آسٹریلیا کے حکمران لیبر پارٹی کے رہنما وزیر اعظم اینتھونی البنیز کی قومی انتخابات میں شاندار کامیابی. اپنے حریف لبرل نیشنل اتحاد کے پیٹرٹن کو شکست دی. اپوزیشن پارٹی نے الیکشن میں اپنی ہار قبول کر لی. حکومت کے لیے ایوان میں 150 میں سے 76 نشستیں درکار ہیں. لیبر پارٹی کے 82 امیدوار کامیاب ہو گئے. پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن آج لاہور قلندرز اور کراچی کنگز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مد مقابل. مقابلہ رات 8 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. پوائنٹس ٹیبل پر لاہور قلندرز کے 9 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن. کراچی کنگز 8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود. دوسرے نمبر پر چلی گئی. گلیڈیٹرز نے 158 رنز کا ہدف آخری اوور میں 8 وکٹوں پر حاصل کیا. فہیم اشرف کی 4 وکٹیں. حسن نواز کی 64 رنز کی میچ وننگ اننگز. PSL دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست. باکسنگ کے میدان میں بھارت کو بدترین شکست. پاکستانی باکسر شہیر آفریدی نے تھائی لینڈ میں بھارت کے ترجوت سنگھ بابا کو ناک آؤٹ کر دیا. پاکستانی باکسر کی جانب سے مکوں کی بارش. بھارتی باکسر سنبھل نہ سکا. اور اسپین میں WTA ماسٹرز 1000 میڈرڈ اوپن. عالمی نمبر 1 بیلاروس کی ارینا سابالینکا نے تیسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا. فائنل میں سابالینکا نے امریکہ کی کوکو گاف کو اسٹریٹ سیٹس میں مات دی. سابالینکا کا رواں سال کا یہ تیسرا WTA ٹائٹل ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں ہما ملک. ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال. موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ دیں گے.
ब्रीफिंग पाक भारत मौजूदा सूरत हाल और कौमी सलामती के हवाले से होगी। अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में यह ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ की आला मिसाल है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के लिए कंट्रोल लाइन के 2 रोज़ा दौरे का इंतजाम कर रही है, जिसका मकसद पाकिस्तान में नाम नहाद दहशत गर्दी के कैंपों के हवाले से भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। भारत कंट्रोल लाइन पर दहशत गर्दों के मुबैना ठिकानों के बारे में 12 बेबुनियाद दावे कर चुका है। दौरे में मीडिया नुमाइंदगान को उन मकामात पर ले जाया जाएगा जिनके बारे में भारत दहशत गर्दी के कैंपों का झूठा प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान अमन के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इरादा करता है और दुनिया में कहीं भी किसी भी किस्म की दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। कौम अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है और भारत की जानिब से किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपका ये भाई इन साथियों की मदद के साथ आपके सारे मशवरे उनकी आवाज भी बनेगा और आपको यकीन दहानी कराता है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला उनको हल करके भी दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपने जो टायर की बात की कि जी आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है, उसकी हमें हौसला शिकनी करने के लिए हर किस्म की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक मलिक वहीद साहब, और हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल, उनकी सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ और अहमियत नहीं रखती। इसीलिए ना सिर्फ हमने लोगों को आगाही देनी है, पर उनके लिए मुतबादिल और अफोर्डेबल ईंधन का भी इंतज़ाम करना है। तो मुझे आज ये भी खुशी है कि आपके दरमियान जब बैठा हूँ, शहबाज शरीफ साहब की अनथक मेहनत के साथ आज बिजली की कीमत जो 40 रुपए से तजावज़ कर चुकी थी, आज तकरीबन अमली तौर पे 7-8 रुपए उस बिजली के अंदर गिरावट कर दी गई है और लोगों के लिए नए कनेक्शन लेने की आसानी पैदा कर दी गई है। उसके बावजूद भी अगर आप में से किसी को कोई मसला आता है तो आपने इनमें से किसी नुमाइंदगान को पकड़ के कोई ट्रांसफार्मर का मसला, कोई कनेक्शन बढ़वाने का मसला, कोई नया कनेक्शन लगवाने का मसला, इंशाल्लाह ताला उसके अंदर जो मदद दरकार होगी आपके लिए इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। इसके साथ साथ आज एक चीज जो मैं आपसे हुकूमत की बिना के ऊपर आपके अदना से नुमाइंदे और एक मुस्लिम लीग नून के वर्कर से के तौर पे बाद में और एक पाकिस्तानी के तौर पे पहले आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूं वो ये है कि आज हमें खित्ते की सूरत हाल देखते हुए अपने दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत है। हम सबको एक दूसरे के दरमियान नफरतें घटाने की ज़रूरत है। हमें दुश्मन को ये पैगाम देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की कौम एक मुट्ठी की तरह अकेली इकट्ठी खड़ी हुई है और अगर किसी ने हमें मैली ना आंख से देखा तो हम इंशाल्लाह ताला उसका मुंह तोड़ के भी दिखाएंगे जिस तरह पहले दिखाया था, और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम के आगे सुरखरू होकर दिखाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप सब लोगों से जो दरख्वास्त है वो ये है कि अमन, इत्तेफाक, इत्तेहाद का पैगाम हुकूमत की तरजीह है अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने हमसायों में हर जगह पहुंचाएं। और मैं इस मीडिया के साथियों की तवस्सुत से ये भी आपसे गुजारिश करता हूं, पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरह कमजोर या अपना दिफा करने की काबिलियत और सलाहियत नहीं रखते। अगर हम ये चीज को खुले दिल के साथ सारी दुनिया के सामने रख रहे हैं कि गैर जानिबदार तहकीक और तफ्तीश करवाएं, और जिसने भी घनौनी दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर, साथ वाले मुल्क के अंदर या कहीं और भी की है, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं और उसके लिए चाहते हैं कि कानूनी तौर पे जो उसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाने के लिए, उसको उसकी सजा दिलवाने के लिए जो मदद, जो हमारे से आसानी, हमारे से पार्टनरशिप चाहते हैं, हम उसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। पर अगर इसको हमारी कमजोरी के तौर पे लिया गया तो जो पहले हुआ था
उससे भी बढ़ के जवाब मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क की दिफा को जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने एटमी ताकत बना के नाकाबिले तरकीब बनाया था, उसी तरह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी वो ताकत और कुव्वत रखती है कि पाकिस्तान का दिफा कर सके इंशाल्लाह ताला। आखिर में मेरे भाई मलिक वहीद साहब ने बताया कि ये इलाका मोमिनपुरा का हो गया, इसके साथ शादीपुरे का हो गया, सलामतपुरे का हो गया। ये इलाका इस इलेक्शन के अंदर NA 119 के अंदर जम किया गया। तो यहाँ पे यकीनन वो महरूमियाँ जिनकी तरफ मलिक वहीद साहब ने निशानदेही की वो हमें भी नज़र आती हैं कि किस तरह से सड़का पछता हाल है, किस तरह से पानी और सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तरजीही बुनियादों के ऊपर इलेक्शन के बाद जो दो बड़े काम किए गए, आज मुझे खुशी है मेरे इस भाई मलिक वहीद की क़यादत के अंदर वो पाया तकमील पे भी पहुंच चुके हैं। MS रोड पूरी तामीर हो चुकी है, सिद्दीक़ अकबर साहब इसी तरह ही हैं। और माजिद मुगल साहब आप बताएं, बहीनी रोड क्या पूरी वहां पे तामीर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? तो ये दो बड़ी शाहराहें जो इन यूसीओं के दरमियान में से जाती हैं, लोगों के लिए तकलीफ का बायस थी, आज वो पाया तकमील पे पहुंच भी चुकी हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मदद से तरक्याती कामों का अरबों रुपए के तरक्याती कामों का आज आगाज भी इस यूनियन काउंसिल से होने जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला आपसे ये वादा रहा, जब तक आपके इस भाई को एक भी सांस मौजूद है, हिम्मत मौजूद है, इस भाई की साथ मदद मौजूद है, इन सारे साथियों की मदद मौजूद है, इंशाल्लाह ताला आपको आपका हक और लाहौर के बाकी यूनियन काउंसिलों की तरह आपकी तरक्की को यकीनी बनाना इस टीम की जिम्मेदारी। और इंशाल्लाह ताला आपके आगे बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आखिर में आपके शेख साहब सवाल मैं बिल्कुल ले लेता हूं जो आप कहेंगे, उससे पहले मैं सारे दोस्तों का बाज़ाब्ता तौर पे अपनी तकरीर को इख्तिताम करते हुए शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे सिर्फ ये उम्मीद रखूंगा कि आप अपने उन कायदीन को जो नफ़रतें नहीं बोते, जो ज़ख्मों के ऊपर मरहम रख के पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करके मुश्किल तरीन माशी मसाइल से और खित्ते में जो आपके जो यहाँ पे सूरत हाल बनी है उससे निकालने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों से मैं ये वादा लेके जा रहा हूँ और अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बताऊंगा कि UC 138 ने ये वादा किया कि वो इस मौके के अंदर हर वक्त मियाँ नवाज शरीफ का साथ देंगे कि नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की खिदमत हमारा सियासी मंशूर है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया गया, पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पुलवामा फॉल्स फ्लैग हमले में भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का मोदी का खेल भारतीय मीडिया पर भी बेनकाब हो गया है। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चला दिया। कांग्रेसी रहनुमा की जानिब से वीडियो चलाते ही एंकर पर्सन को सांप सूंघ गया, जबकि बीजेपी की आलाकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करती रही मगर नाकाम हो गई। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शोहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील की थी। मोदी सरकार का अपने हलाक फौजी जवानों के नाम पर सियासत का गंदा खेल मंजर आम पर आ गया। मोदी भारतीय कौम के जज्बात भड़काकर सियासत का धंधा करता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में पहलगाम फॉल्स फ्लैग की असल महरिका, जमीनी हक़ाइक़ और भारत की जानिब से किस तरह झूठा बयानिया बनाया गया को उजागर किया गया है। डॉक्यूमेंट्री में पहलगाम फॉल्स फ्लैग में मौजूद वाज़ेह इबहाम और कोताहियों की नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ निशानदेही की गई है।
Top stories, the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where terrorists opened indiscriminate fire. नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक डार ने मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातो सरी मोहम्मद हसन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त, भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, प्रोपेगेंडा और सिंतास माहदे की यकतरफा मुअत्तली से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए मुल्क की खुदमुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखते हुए इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर दिया। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और अफ्रीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का कहा। दोनों रहनुमाओं ने बदलती हुई सूरत हाल पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने लाहौर में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक भारत सूरत हाल बिगड़ी तो दुश्मन को नाकों चने चबाना होंगे। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी बहादुर अफ़वाज के साथ खड़ा है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि भारत गुज़श्ता 2 हफ्तों से अपने ही गिरदाब में फंसा हुआ है और पूरी दुनिया में उसकी जगहसाई हो रही है। वफाकी वज़ीर से मुलाकातें करने वालों में NA-17 से सियासी अमायदीन, IPP की शोबा ख़वातीन और स्टूडेंट्स फोरम के वफूद शामिल थे। इस मौके पर मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदों और साबिक काउंसलरों ने IPP में शमूलियत का ऐलान भी किया। मुल्तान प्रेस क्लब में किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान है तो हम हैं। उन्होंने कहा कि किसान और पाक फौज दोनों मुल्क की सरहदों और ज़मीन की हिफाजत के ज़ामिन हैं। कश्मीर हमारी शहरग है और पानी हमारी ज़िंदगी है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत ने कारगिल और पुलवामा पर भी झूठ बोला, अब दुनिया मजीद झूठ पर यकीन नहीं करेगी। खालिद खोखर ने कहा कि मोदी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अमन के लिए भी खतरा है। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, भारत अपने अज़ाइम से बाज रहे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि पार्टी के कारकुन हमारा कीमती असासा हैं। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने हमेशा इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया। हवेलिया में हज़ारा डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी ओहदेदारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मौशी बहरान से निकाला गया है। मुल्क की मईशत रोज़ बरोज़ मजबूत होती जा रही है। तंजीम साजी के हवाले से मुनक़िदा इजलास से सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा अब्बासी, हज़ारा डिवीजन के सदर और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पार्लिमानी लीडर सरदार शाहजहान यूसुफ, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर अवान और पीर साबिर शाह ने भी खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि पूरी कौम मुल्क की सालमियत के लिए यकजा है और पाक फौज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुँच गए हैं। मस्कत एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मस्कत की वज़ारत दाखिला के आला हुक्काम सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद अल मुसैयदी, ओमान में पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद नवीद सफदर बुखारी ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और खालिद बिन बिलाल बिन सऊद के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ने कहा कि ओमान के साथ इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के ज़मन में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला ओमान के आला हुक्काम से भी मुलाकात करके खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ओमान की हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और कश्मीरियों पर मज़ालिम के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मुज़ाहरे में शामिल मुस्लिम लीग नून के कारकुनों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार और दीगर मुकर्रिरीन ने मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के हर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत का वतीरा है। आलमी ताकतें बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी पर भारत से जवाब तलबी करें। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर तशद्दुद और इंतशार बढ़ने लगा है। नैनीताल में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा और लूटमार शुरू कर दी है। इंतहा पसंद हिंदुओं की दरिंदगी के खिलाफ भारतीय शहरी शाहिला नगी ने आवाज़ उठाई। शाहिला नगी हुजूम के सामने डट गई और दुकानों को बचाने की कोशिश की। शाहिला नगी को मुसलमानों का साथ देने पर इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से धमकियां शुरू हो गईं। शाहिला नगी का कहना है कि पहलगाम में जो हुआ इससे इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। मजीद उनका कहना था कि इंतहा पसंद अपनी सोच देखें, ये तुम्हारी सोच है जो तुम्हें सड़कों पर ले आई है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इंतहा पसंद हिंदुओं की सोच ने पूरे भारत को लपेट में ले रखा है। आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। पाकिस्तान की आर्टिस्ट बिरादरी का भी कहना है कि अमन हमारी ख्वाहिश है, कमजोरी नहीं। पूरी कौम वतन अजीज के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक तनाज़ा जो कश्मीर का मसला है वो डिस्प्यूटेड मसला है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल सादा सा है कि इस डिस्प्यूटेड मसले को इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल किया जाए, और जब ये मसला इस तरीके से मेज़ पर बैठ के हल हो सकता है तो उसको एक अहमकों की तरह, ज़माना जाहिलियत की तरह जंग के जरिए से सॉर्ट आउट करना, ये एक तरह की बिल्कुल ही इंसानी शऊर की पस्ती की अलामत है। जंग लड़ने को तैयार हैं हम, आजमाना नहीं। हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो जंग लड़ना बखूबी जानते हैं। भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक तारीख है जिसके असरात से कोई भी महफूज नहीं। जहाँ तक उसकी मुमकिना जारियत का सवाल है, पाकिस्तान उसके मकरू अज़ाइम से अच्छी तरह आगाह है। अगर उसने जारियत के इर्तिकाब की कोशिश की तो उसको मुंह की खाना पड़ेगी। हमारी अमन की ख्वाहिश जो है उसको हमारी मजबूरी या हमारी कमजोरी ना समझा जाए। एंड रेस्ट एश्योर्ड, इस दफा अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो द रिस्पांस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत होती है तो उसका भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत को हम पाकिस्तानियों का एक ही पैगाम है, हम बड़े पुरअमन हमसाया हैं आपके। हमें आप कमज़ोर मत समझें। अगर आपने हमें कमज़ोर समझा तो बहुत ज़िल्लत उठाएंगे आप। जिस तरह हम आपको बर्दाश्त करते हैं, आप हमें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो हमारे अमन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो हमें उनका जवाब देना आता है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद था, रहेगा और है। आवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज तस्बीह के दानों की मानद है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि कुदरती आफात हों या दुश्मन से जंग, अवाम हमेशा ही मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहे हैं। अब भी वही जज्बा कायम है। अवाम का पाक फौज के काफिले पर फूल फेंक कर इजहार यकजहती। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत के खिलाफ जंग के महाज पर कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमारे अवाम का जज्बा और मोहब्बत मुसल्लह अफवाज के हौसले बुलंद करता है। भारत की किसी भी जारहियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्तान में वकला बरादरी के एहतजाज का सिलसिला जारी है, जहां भारतीय धमकियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार भी किया जा रहा है। वकला के एहतजाज और लाहे अमल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट बार के सदर मोहम्मद अजहर खान मुगल से हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा ने खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाएंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा जो है फूट गया है और इंडियन रॉ एजेंसी जो है उसके इसमें मुलविस होने के वाज़े जो शवाहिद जो हैं वो भी सामने आए हैं। और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज ने भी कहा है कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। मुल्तान की वकला बिरादरी जो है इस हवाले से क्या कहती है, सदर हाई कोर्ट बार मोहम्मद अजहर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये इंडिया की भूल है कि वो खुदा न खासा अपने नाकाम जो उनके मज़मूम मकासद हैं कि उनमें वो कामयाब हो सकेगा। 1947 से लेकर आज तक
हमेशा उसने कोशिश की है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, और हम समझते हैं कि अज़ली दुश्मन है जो भारत है। हमें अपने सिपह सलार पे यकीन है कि अगर भारत ने ये गलती की तो उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी और इसकी नस्लें याद रखेगी। और वकला बरादरी जो है वो वैसे ही मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तानी है। वकला बरादरी अपने सिपह सलार के पीछे खड़े हैं, और जहां इसको ज़रूरत होगी कौम को, पाकिस्तान को, वकला बरादरी शाना बशाना अपने सिपह सलार के साथ होगी। हाई कोर्ट बार का ये कहना है कि जो वकला बिरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी होगी और इंडियन की किसी भी किस्म की जो जहरीत जो की जाएगी उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जी नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। लोधरा में समाजी, सियासी और ताजिर तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमा, उलमाए कराम, ताजिर तंजीमों के अहदेदारान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। लोधरा में सियासी, समाजी और ताजर बरादरी के ज़ेर तमाम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर भारत और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने भारत मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। आइए अपनी पाक फौज को मजबूत करें। जिस कौमों ने अपनी फौज की इज्जत नहीं की, आज उन मुल्कों का हाल आपके सामने है। जिस मुल्क की अवाम ने अपनी फौज की इज्जत छीन ली थी, आज मुल्क वो बर्बाद हो चुके हैं। मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो भारतीय धमकियों का फौरी नोटिस लें। पाकिस्तान चौक में रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। जिन कौमों ने अपनी फ़ौज को इज्जत नहीं दी, उनके मुल्क बर्बाद हो गए हैं। पाक फ़ौज को मजबूत करने के लिए बहैसियत कौम हम सब एक साथ हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। मंडी बहाउद्दीन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए दिफाए पाकिस्तान रैली निकाली गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान समेत मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदगान और शहरियों ने इस रैली में बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत मेंबर सूबाई असम्बली खालिद महमूद रांझा, आसिफ बशीर भागट, वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ गुलाम मुस्तफ़ा देवान और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुइज़ुल्लाह देवान ने की। रैली के शुरका ने अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के पुरजोश नारे लगाए। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पाक फौज पाकिस्तान की सरहदों की जामिन है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की नापाक जसारत की तो पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी और दुश्मन को मुंह की खाना पड़ेगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से अब तक गिरफ्तार किए जाने वाले 2500 से ज्यादा कश्मीरियों में से 75 पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू कर दिया गया है। KMS के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर जोन VK वर्दी ने 75 कश्मीरियों के खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दायर करने की तस्दीक की है। काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किसी भी शख्स को बगैर मुकदमा चलाए 2 बरस तक कैद रखा जा सकता है। भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते के दौरान 40 मकान भी बारूदी मवाद से उड़ा दिए हैं। भारतीय फोर्सेज की जानिब से कई अजला में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में पहलगाम वाक़े के बाद बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि भारत धोखादही और वादा खिलाफी की एक घिनौनी तारीख रखता है। इसने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का वादा किया था, लेकिन वो ये वादा पूरा करने के बजाय कश्मीरियों को आज़ादी के मुतालबे की पादाश में गुज़िश्ता 77 बरस से तख्ता मश्क बना रखा है। तर्जुमान ने कहा कि भारत को चाहिए कि वो तनाज़ा कश्मीर को फौजी ताकत के जरिए हल करने की अपनी मज़मूम सोच तर्क करे और कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करे। दूसरी जानिब आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर KMS की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर सहाफ़ियों की दुनिया के ख़तरनाक तरीन मकामात में से एक है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 1989 से मकबूजा इलाके में 20 सहाफ़ी पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कत्ल किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मकामी सहाफ़ियों को भारतीय फोर्सेज की जानिब से हिरासत किए जाने, गैर कानूनी गिरफ्तारियों, पुलिस की पूछगछ और जान से मारने की धमकियों का सामना है। बहुत से सहाफ़ियों को खामोश रहने और जलावतनी पर मजबूर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंगापुर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस वोंग और उनकी जमात को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंगापुर की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान सिंगापुर के साथ अपने देरीना शिराकती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन अहम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरुम्मीद हैं।
खबरनामे में शामिल करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबात में दूसरी मुद्दत के लिए कामयाब। ऑस्ट्रेलिया के हुक्मरान लेबर पार्टी के रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कौमी इंतखाबात में शानदार कामयाबी समेट ली है। उन्होंने अपने हरीफ लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पेडरटन को शिकस्त दी। अपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन में अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। ऑस्ट्रेलवी इंतखाबी कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत के लिए ऐवान में 150 में से 76 नशिस्तें दरकार हैं, जबकि लेबर पार्टी के 82 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। गजा की पट्टी में इसराइल की जानिब से जारी मुकम्मल नाकाबंदी के नतीजे में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गजा में भूख और ग़िज़ाई किल्लत के सबब कम अज़ कम 57 फ़लस्तीनी जाम हक हो गए। खुराक, पानी और तिब्बी सामान ले जाने वाले दर्जनों ट्रक इजरायली फौज ने गजा की सरहदों पर ही रोक रखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो फ़ौरी तौर पर गजा तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाए। इन तंजीमों का कहना है कि इमदाद की तरसील में रुकावटें गजा के पहले से ही बहरान ज़दा शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रही है। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी में बदस्तूर अफराद शहीद हो रहे हैं। 45 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जनूबी सूडान की फेंगोक काउंटी में बमबारी के नतीजे में 7 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के इदारे मेडिसिन sans फ्रंटियर्स ने जानी नुकसानात की तस्दीक करते हुए बताया कि बमबारी के नतीजे में इलाके का आखिरी बच जाने वाला अस्पताल और फार्मेसी भी तबाह हो गई है। MSF ने कहा है कि फार्मेसी पर एक बम गिराया गया जिससे वो जलकर खाकस्तर हो गई और अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद ग्रेटर अप्रेनल रीजन के एक कस्बे ओल्ड फेंगाक पर एक और ड्रोन बम गिराया गया जिसमें कम अज़ कम 7 अफराद हलाक हो गए। और अब आप जान सकेंगे खबरें खेल के मैदान से। देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो, दम मस्त देखो, आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PSL की अपडेट्स लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग में आज होगा सुपर मुकाबला, जहां लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स कदाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 10वें एडिशन में दोनों टीमें दूसरी मरतबा आमने सामने होंगी। 15 अप्रैल को कराची में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 65 रन से हराया था। PSL की तारीख में दोनों टीमों के दरमियान अब तक 20 मैचेस खेले जा चुके हैं। लाहौर कलंदर्स ने 6 और कराची किंग्स ने 13 मुकाबलों में कामयाबी समेटी। एक मुकाबला बराबर रहा और सभी अच्छा खेल रहे हैं, तो फिर किसकी जगह? पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से हराकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। ग्लैडिएटर्स ने 158 रन का हदफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में हासिल किया। 64 रन की इनिंग्स खेलने वाले हसन नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान क़य्यूम। Heads is the call. कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। शॉट ओपनर्स की जानिब से 58 रन के आगाज के बाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई और 91 के स्कोर पर 6 बल्लेबाज क्या ही बात है, हक में नतीजा ना आए। दिल एक और विकेट, यहाँ पुल मारना चाहते थे। मोहम्मद कोयटा ग्लैडिएटर्स के फहीम अशरफ ने 3 ओवर्स में 25 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और यहाँ 20,000 नहीं जाएंगे। HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में बच्चों में कैंसर से आगाही का दिन मनाया गया। कैंसर के 3 मरीज बच्चों को ग्राउंड में मेहमान खुसूसी बनाया गया। बच्चों के साथ दोनों टीमों के कप्तान सऊद शकील और शादाब खान ने क्रिकेट खेली। खिलाड़ियों ने बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई और उन्हें दस्तखत शुदा शर्ट्स दी गईं। इस मौके पर PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर भी मौजूद थे। और नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के रवां एडिशन में अब तक 23 मैचेस खेले गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स ने 8-8, जबकि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी ने 7-7 मैच खेले। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 11 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर आ गई है। दिफाई चैंपियन यूनाइटेड की टीम दूसरे नंबर पर चली गई है। यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स की टीम 9 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर है। कराची किंग्स के 8, पेशावर ज़ल्मी 6 और मुल्तान सुल्तान्स के 2 पॉइंट्स हैं।
बल्लेबाजों में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान 340 रन के साथ टॉप स्कोरर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहिबजादा फरहान के 320 रन के साथ दूसरा नंबर और कराची किंग्स के जेम्स विंस 281 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में यूनाइटेड के जेसन होल्डर की 15, हसन अली की 13 और कोयटा ग्लैडिएटर्स के फहीम अशरफ की 12 विकेटें हैं। और नाज़रीन, PSL का हाल आप जान चुके, अब रुख करते हैं मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया समी। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सकाफ़ती इदारे ECO कल्चरल इंस्टीट्यूट तेहरान में अजीम फ़लसफ़ी और शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। ECO खित्ते में अल्लामा इकबाल का फ़िक्री और सकाफ़ती वर्सा के उन्वान से मुनक़दा तकरीब में अक़बालियात के माहिरीन और सकाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। ECI के सदर और सीनियर पाकिस्तानी सिफारतकार डॉक्टर साद एस खान ने तकरीब से खिताब करते हुए उर्दू और फ़ारसी में इकबाल की खिदमत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी उर्दू और फ़ारसी ज़ुबानें बोली जाती हैं, इकबाल को अक़ीदत से याद किया जाता है। तकरीब में अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और खिदमत पर मबनी दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाने समेत खूबसूरत मूसीकी के साथ कलाम इकबाल भी शुरका के सामने पेश किया गया। सेनेगाल में मुनाक़िदा आलमी ज़रई तरबियती प्रोग्राम में पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब रुकन साजिद अली ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। साजिद अली ने सेनेगाल में अफ्रीका राइस के पायदार ज़रई वर्कशॉप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। साजिद अली ज़मीन की बहाली और माहौलियाती मुवाफ़िक ज़राअत पर बैनुल-अक़वामी तरबियत में शामिल होने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। इस मौके पर पाकिस्तानी तंजीम क्लाइमेट फाउंडेशन के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड आउटरीच साजिद अली ने कहा कि सेनेगाल में मुनक़िदा 5 रोज़ा आलमी ज़रई तरबियती प्रोग्राम से हासिल होने वाली मालूमात से मुल्क के ज़मीनी निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये वर्कशॉप अफ्रीका राइस सेंटर और G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव के इश्तराक से अफ्रीका राइस के इलाकाई तरबियती मरकज़ सेंट लुइस सेनेगाल में मुनक़िद हुई, जिसका उन्वान पायदार ज़मीन का इंतज़ाम, बहाली और अफ्रीका के ज़रई मुस्तक़बिल के लिए मजबूत ज़मीनें बनाना है। वर्कशॉप में 25 अफ्रीकी ममालिक और 5 बैनुल-अक़वामी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 30 माहिरीन, पॉलिसी साज़ों और ज़मीनी कारकुनों ने शिरकत की। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन हज को खाने की फराहमी के लिए पाकिस्तान हज कमीशन की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और हिजाज़ मुक़द्दस में मौजूद पाकिस्तानी आज़मीन को मेयार का हामिल 3 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से जाने वाले आज़मीन हज के लिए प्री हज ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। इस मरहले में पहले 15 दिनों के दौरान 39,000 पाकिस्तानी मक्का जाने से पहले मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से इन आज़मीन हज को नाश्ता, दोपहर और रात का खाना फराहम करने के लिए पेपरा रूल्स के तहत 13 कैटरिंग कंपनियों का इंतखाब किया गया है। एक टेक्निकल एवल्यूएशन प्रोसेस और एक फाइनेंशियल एवल्यूएशन प्रोसेस से गुजर के ये फिर फाइनलाइज हुए। उसके बाद हमने इनकी ट्रेनिंग्स करवाई है और उनको कंडीशन रखे हैं कि पाकिस्तानी कुक्स रखने हैं। फिर कुक्स रखने के बाद हमने 1 महीने इनमें इनकी कानों की प्रैक्टिस करवाई है ताकि इनका जो टेस्ट है पाकिस्तानी हमारे हाजियों का, जो एक हमारा जो मुख्तलिफ रीजन्स के है डाइवर्सिफाइड किस्म के, हम उस चीज़ को एड्रेस कर सके। ये कैटरिंग कंपनियां पाकिस्तानी मेयार के मुताबिक खाने तैयार करने के लिए पाकिस्तानी शेफ और बावर्चियों की मदद से पाकिस्तानी मसालों का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि फरीज़ा हज के सिलसिले में हिजाज़ मुक़द्दस जाने वाले पाकिस्तानियों को खाने पीने की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। We used Pakistani spice and if any suggestion from the Ba'ath of Pakistani for any state to cook, our chef is qualified to make as you want. احنا نحط الشيف الباكستاني نے اس پاکستانیوں کے لیے پاکستانی شیف ہائر کیے ہیں اور پاکستانی مینجمنٹ ہائر کی ہے، جس سے جو ہے مینجمنٹ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں کے حاجی ہیں اور ان کو کیسا ٹیسٹ دینا۔ میٹھے میں سوئیاں بنائی ہیں، آلو قورمہ بنایا ہے، بھنڈی بنائی ہے، ڈشیں رول چینج ہوتی ہیں، رول یعنی کہ مینو جو دیا ہوا نا سفارہ نے وہ اس کے حساب سے چلنا ہے۔ مدینہ منورہ میں پاکستانی عازمین حج کو 3 وقت کے کھانے کے ساتھ فروٹ، سویٹ اور مشروبات بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں جو کوکس ہیں ان کو خصوصی طور پر تربیت فراہم کی گئی ہے کہ وہ پاکستانی کھانا پکانے میں مہارت رکھتے ہوں۔ بلال شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مدینہ منورہ۔ کراچی کی کچی بستی میں اسکول کے بچے تبدیلی کے سفیر بننے کے لیے پرعزم ہیں۔ عیسیٰ نگری کے اسکول میں صفائی اور حفظان صحت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے بچوں کو آگاہی فراہم کی گئی۔ رپورٹ کریں گی کنزا نقوی۔
कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ने नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के ताउन से ईसा नगरी के निजी स्कूल में बच्चों के लिए आगाही सेशन मुनक्किद किया। इस सेशन का मकसद बच्चों में साफ पानी के इस्तेमाल, सफाई के असूलों और सेहतमंदाना आदात से मुतालिक शऊर उजागर करना था। मैं तो बस एक ही दफा हाथ धोता हूँ, फिर मैं तो हाथ ही नहीं धोता। मैं दोपहर का खाना खाते वक्त भी हाथ नहीं धोता, शाम की चाय और समोसे खाते वक्त भी हाथ नहीं धोता, और मैं रात का खाना खाते वक्त भी हाथ नहीं धोता। इस मौके पर बच्चों को समझाने के लिए स्क्रीन पर हिफ्जान सेहत से मुतालिक नज़में सुनाई गईं और तस्वीरी पैगामात दिखाए गए। चिंटू और चीना के किरदारों पर मबनी रोल प्ले के जरिए भी तालीम की अहमियत, हाथ धोने के फवायद और गंदगी से बचाव जैसे अहम मौज़ूआत को आसान अंदाज में पेश किया गया। बच्चों ने न सिर्फ इस सेशन से लुत्फ उठाया बल्कि अपने घरों और महल्ले में भी सफाई का ख्याल रखने का वादा किया। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए निजी फलाही इदारे की जानिब से बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मुफ्त डायलिसिस और लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तफसील जानते हैं हसन नासिर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए सरकारी और निजी फलाही इदारे खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए निजी फलाही इदारा सवाब किडनी केयर एंड डायलिसिस सेंटर अरसा दराज से खिदमात अंजाम दे रहा है। इदारे में गुर्दों के अमराज के सीनियर डॉक्टर्स और आला तरबियत याफ्ता अमले की निगरानी में जदीद तरीन मशीनों पर गुर्दों के मरीजों को डायलिसिस, फेस्टोला, हेपेटाइटिस के इलाज और मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्ट के अलावा अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। इसमें 30 से ज़्यादा मशीनें हैं डायलिसिस की। 50 से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो रोज़ाना डायलिसिस होती है उनकी। पहला मकसद है लोगों को गुर्दा फेल होने से बचाना। गुर्दा फेल होने का अमल जो है ये पेनलेस होता है, दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। लोग समझते हैं कि दर्द नहीं हो रहा तो गुर्दे फर्स्ट क्लास हैं। क्वालिटी ऑफ डायलिसिस हमारे यहाँ होती है जो एक मेयार के मुताबिक तकरीबन 4 आवर्स दिए जाते हैं हमारे सारे पेशेंट को। मैं पिछले 15 साल से डायलिसिस पर हूँ। इस इदारे की जो क्वालिटी है वो आप किसी भी पाकिस्तान के अच्छे इदारे से आप कंपेयर कर सकते हैं। 1.5 महीने से आ रहे हैं यहाँ पे, हमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी लगी है, इलाज हो रहा है, अच्छा स्टाफ है और सब फ्री है मेडिसिन। इदारे की जानिब से वक्तन फवक्तन आवाम को मर्ज से बचाव और इसके इलाज से मुतालिक आगाही सेमिनार्स का भी एहतमाम किया जाता है। डायलिसिस यकीनन एक महंगा अमल है और इसके इलाज की मुफ्त फराहमी मरीज और उसके अहल खाना के लिए किसी नेमत से कम नहीं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इश्तराक से नया फैसलाबाद में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के हवाले से 10 रोज़ा तरबियती कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया है। ट्रेनिंग कोर्स में दुनिया भर से ज़राई साइंसदानों ने शिरकत की। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आज़म। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के फ़रोग के लिए मुनक़िद किए गए ट्रेनिंग कोर्स में पाकिस्तान समेत 21 ममालिक के 45 शुरका को तरबियत दी गई। कोर्स के शुरका को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के माहिरीन ने तरबियत के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़राअत पर होने वाले असरात से निपटने के तरीकों से आगाही दी। शुरका को नयाब में एग्रीकल्चर फील्ड का दौरा भी करवाया गया। हम न्यूक्लियर टेक्निक्स को हमने खुद भी इनको सीखा है, 50-60 साल से हम ये काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ें हमने डाउन लेवल तक पहुँचा दी, फार्मर लेवल तक, कि वो किस तरह हमारी वैरायटी जो डेवलप हुई है, स्पेशली ड्राउट, हीट और न्यूट्रिटिव, उनके में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। Training class to useful many technique in my hometown, Thailand. I learning some nuclear isotopic technique and some basics of the soil fertility that can apply with my country. with some sectors. ट्रेनिंग कोर्स की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर साइंस पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर मसूद इकबाल थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के ज़राअत पर असरात के हवाले से जदीद खतूत पर किसानों और ज़राई साइंसदानों की तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के इख्तिताम पर कोर्स के शुरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। ज़राअत को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रखने के तरीकों से आगाही के लिए बैनुल अक़वामी वर्कशॉपों का इनेकाद पाकिस्तान की ज़राई तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके सबरा की रूहानी शख्सियत पीर सैयद अनवर अली शाह कंधारी शहीद के सालाना उर्स पर मज़ार की चादर पोशी की गई। वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा ने उर्स की 2 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ किया। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। जलालपुर पीरवाला में मरूफ रूहानी बुजुर्ग और आलम दीन पीर सैयद अनवर शाह कंधारी के सालाना उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में आस्ताने शरीफ के मुरीदैन शिरकत कर रहे हैं। हाउसिंग एंड वर्क के वफाकी वजीर मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। चादर पोशी के साथ ही उर्स का आगाज़ हुआ।
2 रोज़ा जारी रहने वाले उर्स में महफिल समा, दुरूद व सलाम और आलम इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये देहाती जो मेले और दरबारों के जो फंक्शंस हैं और कुश्तियों के जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो हमारी तकरीबात हैं उनको अब हुकूमत पंजाब जो है वो सरपरस्ती कर रही है। का मकसद ये है कि देहाती इलाकों में जो नौजवान तबका है उनको अच्छे कामों की तरफ माइल किया जाए, उनको पॉजिटिव कामों की तरफ माइल किया जाए। इस मेले में इलाकाई खेल का इंतजाम भी किया गया। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। पीर सैयद अहमद रसूल शाहचूरा शरीफ ने कहा कि भारत पहलगाम ड्रामे में कामयाब नहीं हो सकता, वो शेर दिल पाकिस्तानियों और बहादुर अफवाज का मुकाबला ही नहीं कर सकता। सालाना सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सैयद अहमद रसूल शाह ने कहा कि पहलगाम ड्रामा है, इसकी कोई हकीकत नहीं। आलमी बरादरी ने भी पहलगाम वाक़े को भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। भारत रिवायती अयाई और बदनीयती से पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। पूरी कौम मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे प्यारे वतन में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है, हम इसे बेनकाब करेंगे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठवार, पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई सिंध और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी वस्ती पंजाब और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर यालाबारी और मूसलाधार बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, तहम जनूब मशरकी बलोचिस्तान, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ज़ेनी सिंध में चंद मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत 45, जैकबाबाद, सिब्बी, मोंजदाड़ और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने जानी, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने अख्ताम को। हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।